episode of Let's Talk Comfort Session. بی بی سی اور سیربین یہ ایک ایسے دو نام ہیں کہ جن سے ہر پاکستانی اور ہر ہندوستانی اور بنگلہ دیش اور جو بھی ساؤتھ ایشیا سے جن کا تعلق ہے، وہ چاہے انگلینڈ میں رہتے ہوں، چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، یا چاہے پاکستان انڈیا میں رہتے ہوں، وہ سیربین کے نام سے بہت خوبی واقف ہیں. اور جو سیربین کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیربین کے ایک آئیکونک اینکر تھے کہ جنہوں نے اس سیربین کے پروگرام کو ایک بلندیوں تک پہنچایا، اور انہوں نے اپنی ہسٹری کے اندر بہت مارکت الآراء انٹرویوز کیے، جس میں ورلڈ لیڈرز کے انٹرویو شامل ہیں، جن میں بہت بہت امپورٹنٹ لوگوں کے انٹرویو شامل ہیں. اور ان کا ایک مخصوص طرز بیان اور ان کا ایک مخصوص بات کرنے کا سٹائل جو تھا، وہ ان کا ایک درہ امتیاز تھا کہ جس کو تمام لوگ بہت پسند کرتے تھے. میں بات کر رہا ہوں ہمارے سب کے محترم شفیع نقی جامی صاحب کی، جو کہ آج ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. وی آر ویری فارچونیٹ دیٹ ہی از گیونگ ٹائم ٹو اس، اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو invite him inside this session. سر آپ کو انویٹیشن چلا گیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ آپ کی لائن مل گئی. سر میری خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. قطعاً نہیں. حکم. خیریت سے ہیں سر آپ؟ بالکل خیریت سے ہیں. کبوتر اڑ رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے. سر دیٹس گڈ ٹو ہیئر. آج الٹا سسٹم ہو گیا کہ یوزلی آپ اسکرین کے اس طرف ہوتے تھے اور بی بی سی کے اسٹوڈیو سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہوتے تھے. آج ہم نے آپ کو اس طرف مہمان کی کرسی پہ بٹھا دیا. تو دوسرے لفظوں میں میں آج آپ کا گنی پگ ہوں اور میں آپ کے مقتل میں ہوں. گردن حاضر ہے. چلے سر، ویری گڈ سر، آنر ٹو ہیو یو ہیئر سر. بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے اس پہ سیشن پہ آئے. تو آپ کا کوارنٹین کیسا چل رہا ہے سر؟ سر اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح کی ہدایت ہے کہ جب تک کہ ضرورت نہ ہو گھر سے نہ نکلو، جب نکلو تو ماسک لے کے نکلو، اور ایسا نہ کرو کہ کسی سے فوراً عید ملنے لگو، فاصلہ رکھ کے چلو. اور جہاں پہنچ جاؤ، جہاں جا رہے ہو، وہاں بھی اگر قطار لگانی ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھو، 2 میٹر کا خیال رکھو. ایک تو پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب تک کہ ضروری نہ ہو گھر سے ہرگز مت نکلو. اس کی بھی پابندی ہو رہی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ سانس رک رک کے لینا ہے، سانس دل بھر کے لینا ہے، بدن بھر کے لینا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، پانی کا استعمال کرنا ہے، اور وٹامن سی پانی کے ساتھ ہو تو یا اس کے علاوہ ہو تو، یا مطلب جتنی ہدایات ہیں سب پر عمل کرنا ہے اور کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ کی احکام کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں سپریم کورٹ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو عقل سلیم کہتی ہے، جو کامن سینس کہتا ہے، میں وہ کر رہا ہوں. اب یہ نہیں پتا کہ عقل سلیم سپریم کورٹ سے کلیش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور سپریم کورٹ کہاں جا رہا ہے. صحیح ہے. یا عقل سلیم ہے، یا ہم وہاں پہ کچھ شہزادہ سلیم بیٹھے ہیں جو کہ پھر دنیا معافی ہاں سے بے نیاز ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں فلمی ڈائلاگ مت لے کر کے آئیں شہزادہ سلیم کو، اور یہ ان اداکاروں کو اور اداکاراؤں کو مت لائیں، ورنہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اتنا قصہ مختصر ہے کہ یہاں پر کوارنٹین کی جتنی پابندی ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا دیکھا نہیں تھا. یعنی دوسری جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، ان میں کبھی بھی پبلک مقامات بند نہیں ہوئے تھے. اب بند ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سڑکیں ایسی سنسان ہوں کہ بطخیں اور بلیاں اپنے بچوں سمیت دم دباتی ہوئی پھیلاتی ہوئی نکلے اور قطن پرواہ نہ کر رہے ہیں. لیکن اب ہو رہا ہے. میں نے وہ چیزیں نہ دیکھی نہ سنی جن کا اب میں بذات خود مشاہدہ کر رہا ہوں. کیا کیا بتاؤں صوفی صاحب، آپ کو کوزے میں دریا بند کرنا مشکل ہو رہا ہے.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वही मैं आपसे पूछने लगा था कि आपने माशाल्लाह इतनी हिस्ट्री कवर की। यू हैड सच अ इलस्ट्रियस करियर एट सैरबीन। आपने काफी चीजें देखी, जंगें देखी, मुजाहरे देखे, हुकूमतें उल्टती देखी, हुकूमतें पलटती देखी, लेकिन ऐसा नजारा नहीं कभी आपने देखा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैंने जंगें देखी हैं, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम तो नहीं देखी। मैंने हम्म देखी थी इराक ईरान की जंग हम्म देखी थी, डेजर्ट स्टॉर्म वो देखा था हम्म जनरल शॉर्ट्सकॉफ का, हम्म जिस वक्त सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, वो जंग देखी थी। और उसके हम्म बाद जंग देखी जो बुश साहब ने शुरू की थी, हम्म जिसमें सद्दाम हुसैन लपेट में आए, और फिर उसके बाद हम्म अरब स्प्रिंग के नाम पर कौन कौन नहीं हम्म आया, जो फौजी हम्म थे वो लपेट में आए। अच्छा बाय द वे, हम्म फौज को फौज खत्म करती है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि फौज को अवाम खत्म कर रहे थे या अवाम खत्म कर रही थी। और हम्म एक अजब सा समा था। तो वो जंगे मैंने जरूर देखी, और उनको हम्म देख करके कान पकड़ लिए कि क्या असर होता है जंग में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सर कवरेज की थी, आप गए थे इराक या आपने लंदन से कवरेज? नहीं, हमारे नुमाइंदे थे वहां पर। और अच्छा। ऐसा होता है कि इतनी तेजी से खबरें आ रही होती हैं, तो बीबीसी हम्म, के नुमाइंदे तो थे, जी लेकिन जी। एज सच उर्दू सर्विस के नुमाइंदे उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन हम्म, बीबीसी के अपने नुमाइंदे इस कदर थे कि हम्म, दिन रात वो उसको कवर कर रहे थे, इसलिए कोई हम्म, मसला तो नहीं था। मूविंग हम्म, स्टोरीज थी, हम लोग बराह रास्त हम्म, तर्जुमे भी कर रहे थे, और बराह रास्त हम्म, सीन काट करके दूसरे हम्म, उनके सीन भी ले रहे थे, और हाथ के हाथ हम्म, तराजिम भी कर रहे थे। तो बहुत ठीक हम्म, ठाक था। यानी आपको हम्म, लगेगा नहीं कि एक लम्हे भी हम्म, कोई खबर मिस हुई या कोई मंजर हम्म, मिस हो गया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपका करियर जब बीबीसी सैर बीन से स्टार्ट करते हैं, कि सैर बीन पे जब आप शुरू हुए, तो उससे पहले आप पाकिस्तान कराची में थे और 71 के बाद आप शायद लंदन गए। तो क्या उसके पीछे जो सकूत ढाका का वाकया हुआ था उसमें आपकी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप थे, सो वो उसने कोई रोल प्ले किया कि आप मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान से चले गए, और फिर बीबीसी सैर बीन पे कैसे आप लैंड किए? अच्छा सूफी साहब, आपने वही 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 शैतानी की जो मुझसे या मेरे साथ बेशुमार लोग करते हैं। आपने एक सवाल तो नहीं किया ना, बेशुमार सवाल आपने एक साथ कर दिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक करके जवाब दूं। ठीक। 1971 में मैं बरतानिया नहीं आया था, यानी सकूत ढाका 16 हम्म, दिसंबर के बाद मैं नहीं आया। उस वक्त तो हम्म, मैं जामिया मिलिया कॉलेज से फारिग हो करके जामिया कराची का रुख करने वाला था। तो हम्म, मैं 6 7 8 साल रहा। उसके बाद पाकिस्तान मैंने हम्म, टूटते हुए देखा। हम्म, और जिस वक्त ये कहा गया था ना कि हम्म, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर शिराजी साहब प्रोग्राम कर रहे थे, कौमी हम्म, नगमे गाए जा रहे थे, और हम्म, एक ऐलान फिर ये हुआ कि हमारी फौज पीछे हट गई है, और इंतजामी है, तो सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, हम्म, इंतजामी एतबार से, इंतजामात के लिहाज से इंतजाम जो था ढाका और मशरकी पाकिस्तान का भारतीय हम्म, फौज के सुपुर्द कर दिया गया है। उस वक्त हम्म, मैंने इन्ना लिल्लाह पड़ी थी। इसका मतलब हम्म, बैनुस्सतूर, ये खबरें तो हम्म, देते ही नहीं है ना, खबर को हम्म, लपेट करके देना खबर नहीं होती। तो वो मंजर मैंने देखा था। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर आपाधापी हुई है, उसके बाद हम्म, जो 90,000 की फौज गिरवी रखाई गई, और उसके बाद हम्म, जो जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम जिस तरीके हम्म, से इस हथियार डाली हुई फौज को निकाल करके लेकर के आए, वो मंजर मैंने हम्म, अपनी आंखों से देखा। उसके हम्म, बाद शिमला मुहिदा, दूसरी चीजें, और वो दूसरे मुहिदों का होना, मिसेस इंदिरा हम्म, गांधी के साथ, और फिर हम्म, वापस आना इस फौज का, वो बड़ा दर्दनाक हम्म, मंजर था। रेडियो पर एक हम्म, प्रोग्राम आया करता था, सूफी साहब, हम खैरियत से हैं। अच्छा। और वो प्रोग्राम ये होता था कि मैं फला, चक फला, ये ये मैं यूं, हम खैरियत से हैं। उस प्रोग्राम का हम्म, नाम ही ये था कि हम सब खैरियत से हैं। तो हम्म, रोजाना रोजाना ये सीने के ऊपर कचोके लगते थे इस प्रोग्राम के हम्म, साथ। जाहिर है भारत हम्म, के हाथ तो प्रोपेगेंडा मशीन आई हुई थी। तो ये पूरा जो पुराशोभ दौर था 7 8 साल का, और फिर हम्म, उस वक्त जो भुट्टो साहब के खिलाफ
मुहिम चलाई गई, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया गया, वो चीजें मेरी आंखों गवाह हैं, वो मैंने खुद देखी है। और जिस तरीके से भुट्टो मरहूम को शहीद किया गया, हलाक किया गया, सफाई हस्ती से मिटाया गया, वो बड़े दर्दनाक मनाजिर मैंने देखे। और मैं बोलना नहीं चाह रहा, मेरा दिल दुखता है उन वाकयात का जिक्र करते हुए, लेकिन पाकिस्तान टूट रहा था, टूट चुका था। उसके बाद फौज जो थी डीमोरलाइज हो गई थी, और वो दिन ना उनको बयान करने को दिल चाहता है और ना वो अच्छा भी लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है सूफी साहब कि मुताला पाकिस्तान में, ध्यान से सुनिए, ये भूख है, मुताला पाकिस्तान में ये सब ना पढ़ाया जाता है, ना दिखाया जाता है, तारीख को मस्त करके पेश किया जाता है। जो ये मैं खुद पढ़ करके आया हूँ, अभी मुताला पाकिस्तान मैंने पूरा पढ़ा, पंजाब बोर्ड की तरफ से शाया हुआ, ये सब चीजें गलत बताई जाती हैं। तो वो दौर था, वो मैंने पाकिस्तान में गुजारा। उसके बाद में आया हूँ पाकिस्तान से निकल करके, तो ऐसा नहीं था कि छुरे निकले हुए थे मेरे ऊपर या मैं दिल बर्दाश्ता था, ऐसा नहीं था। मैं आया था तालीम के लिए, मेरा स्कॉलरशिप कंटिन्यू हुआ, मैं लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में गया, वहां से फिर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और मैं कैम्ब्रिज चला गया, वहां से पढ़ता रहा। लेकिन एक अजब हुस्न इत्तेफाक था कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यूं समझ लें कि एक सड़क का फासला था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अगर मैं जोर से चिल्लाऊं तो सूफी साहब मेरी आवाज वहां पहुंच सकती थी। और मुझे क्या मालूम था कि जिस बिल्डिंग में मैं दाखिल होता हूँ, जहां पर जाकर के मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, जिस तरह सब लोग शुरू करते हैं ऐसे मैंने शुरू की थी और मैं उसका एक हिस्सा बना। मुख्तसर तो कहानी है, लेकिन सैरबीन का पार्ट बनना, उसमें बनने में बड़ा अरसा लगा था सर, बहुत अरसा लगा था। मैं जब वहां गया तो लोगों ने, यारों ने ये उड़ा दी थी कि इसको तो उर्दू नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो फिर मैंने, मुझे पता ही नहीं, ये बात मुझको पता चली 7-8 साल के बाद कि मुझको उर्दू नहीं आती। यार कोई और इल्जाम लगाया होता कि सियासत में जमातिया है, ये कम्युनिस्ट है, दहरिया है, ये है वो है, तो वो लगाया भी तो इल्जाम ये लगाया कि उसको उर्दू नहीं आती। मैं उस वक्त हिंदी सर्विस में जा चुका था, मैं हिंदी सर्विस में काम कर रहा था और ऐसा काम किया है मैंने वहां पर हिंदी सर्विस में कि 9-9.5 साल मैंने हिंदी सर्विस की रोटी खाई है सर। हाँ, मैं ये बल्कि मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, मुझे ये भी पता चला कि आप हिंदी सर्विस का प्रोग्राम करते रहे हैं वहां पे बीइंग पाकिस्तानी, तो ये हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हाँ देखिए, मुझको तो काम चाहिए था, मैं तालिब इल्म था, तालिब इल्म होने के साथ साथ मुझे काम चाहिए था। तो रेडियो मेरा मैदान रहा है, रेडियो पाकिस्तान से, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन में भी यही हरकतें थी तलबा वाली। तो मुझे उर्दू में मेरी दाल गली नहीं, मुझको कह दिया गया कि नहीं, बल्कि एक साहब ने तो यूं, मैं उनकी अगर नकल करूं, मरहूम है वो बेचारे, लो मियां जिनको तर्जुमा करने के लिए एक पीस नहीं दिया, अब बैठ करके उनकी टॉक ट्रांसलेट करो, और उसमें मादरजात गालियां। और उस वक्त मैं हिंदी सर्विस में चला गया था। हिंदी सर्विस के लिए मैं सीटीएफ में, सेंट्रल टॉक्स एंड फीचर्स से टॉक्स लिखा करता था जो ट्रांसलेट हुआ करती थी। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि हिंदी में मेरी इब्तिदा कैसे हुई। एक म्यूजियम में मैं गया, बैटनल ग्रीन मशरकी लंदन का एक इलाका है, वहां पर मैंने प्लेइंग कार्ड्स देखे जो हैंडमेड थे और 800 साल पुराने थे वो। जाहिर है अब मुगलिया सल्तनत से भी पहले के उस दौर के थे वो। मैंने कार्ड देखे, उससे क्यूरेटर से मैंने पूछा कि इसकी तारीख क्या है, उसने मुझको बता दिया कि सर इसकी तारीख ये है, ये हाथ से बने हुए हैं और ये यहाँ पर आए थे। फिर जब ब्रिटिश राज वाले आए तो उन दिनों में जाहिर है इन लोगों ने जो अपने म्यूजियम भर रखे वो सारे अजायब घरों से
चुरा करके लाए हुए यार ये सारी चीजें। तो उनमें वो भी आया हुआ था, कुलुपुत्रा की नीडल लगा रखी है पूरे बुलेवार्ड के ऊपर, तो वो बहुत सारी चोरी की चीजें थी, उनमें ये भी आए थे। मैंने एक टॉक लिखी, तो मुझे याद है कि जाहिर है मैंने अंग्रेजी में टॉक लिखी, तो उसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी सर्विस में। उन दिनों रमा पांडे हुआ करती थी। रमा पांडे ने पूछा कि ये SN जेमी कौन है। CTF वालों ने बताया कि यार वो आप ही के फ्लोर पे तो होते। तो रमा पांडे आई, अतहर अली मरहूम उस वक्त थे BBC उर्दू सर्विस में। तो उन्होंने पूछा आकर के कि SN जेमी कौन है, जामई को जेमी। उन्होंने कहा ये बैठे हुए। अच्छा आप हैं? मैंने कहा जी। तो कहली आप इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? मैंने कहा क्या क्या कर सकता हूँ हिंदी में अनुवाद? वो तर्जुमा मतलब था उसका। मैंने कहा मुझको तो हिंदी नहीं आती। तो रमा पांडे थी जिन्होंने कहा अच्छा आप ले आइए उर्दू में करके, मैं इसको एक एक करके ठीक करा दूंगी। उन्होंने ठीक करवाया, तो पूरी जो टॉक थी सूफी साहब, वो ऐसा लग रहा था बैटल फील्ड बनी हुई है। वो मेरी इब्तिदा थी हिंदी सर्विस में, और उसके बाद मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझ पर काम किया। शिवकांत हुए, अचला शर्मा हुई, और ओंकार नाथ श्रीवास्तव। आपके सर पे बैठा। अब आप इसको चाहे यूं कह लें कि हुमा मेरे सर पे बैठा, वो बेचारा फिसल जाता, लेकिन खैर उन दिनों मेरे बाल थे उन दिनों मेरे बाल थे, अच्छे खासे थे, तो कह ले आप हुमा मेरे सर बैठा। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से सीखी हिंदी। हर साल मैं एक डायरी बनाया करता था, और आखिर में वो शब्दकोश जिसमें लफ्ज लिखना, लफ्ज के माना लिखना, और एक एक विषय वस्तु किस मौजू से ताल्लुक रखता है वो मैंने बना ली थी। तो 10-12 हजार अल्फाज मेरे पास जमा हो गए थे। तो आप कह लें कि वर्किंग वोकैबुलरी आ गई। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मरहूम आले हसन के बाद मैं दूसरा शख्स था BBC हिंदी सर्विस में जो उर्दू रस्मुल खत में, उर्दू लिपि में हिंदी लिखा करता था। उसका तलफ़ुज़, मात्राएं, व्यंजन, वर्णमाला, उच्चारण, ये सारा का सारा उर्दू लिपि में, उर्दू रस्मुल खत में होता था। और जिसकी मैं अदायगी किया करता था, तो दिवंगत ओंकार नाथ श्रीवास्तव, स्वर्गीय ओंकार नाथ श्रीवास्तव के उस्ताद मोहतरम वात्सायन जी ने, वात्सायन जी कौन है? हिंदी के मौलवी अब्दुल हक हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम BBC हिंदी सर्विस में शफी से तलफ़ुज़ पूछा करो। अच्छा। ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने सर पकड़ लिया। वो वापस आया, आकर के उन्होंने एक तो मुझे गाली दी। जाहिर है वो मोहब्बत में थी गाली। कहने मेरे उस्ताद ने कहा मेरे मुझसे कि तुम जाके शफी से सीखो। आज तक वो खत मेरे पास रखा हुआ है। तो सर कहने का मतलब ये कि हुमा सर पे नहीं बैठा, बड़ी मेहनत से मैंने सीखी। और ये दिन आए, मैं उर्दू में लिखा करता था हिंदी, और ये लोग भी कश्मीर की खबर हो और स्वर्ण मंदिर की खबर हो, पंजाब में जो उस वक्त तहलका मचा हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी के दिनों में, ये सारी खबरें मेरे नाम आती थी कि इससे तर्जुमा कराओ, इससे तर्जुमा। लेकिन ठीक तो है। ये आपने हिंदी की कितने साल हिंदी की आपने जो की, तो उसमें आपको कोई ऐसी बताएं, कोई ऐसी खबर जो आपने जो पढ़नी हो लेकिन वो उसने आपको भी डिस्टर्ब कर दिया और यू वर शॉक थे कि आपने किस तरह प्रेजेंट लाइव प्रोग्राम में करना? देखिए जी, खबर होती है, और उसको बयान करते वक्त या उसकी अदायगी करते वक्त आप जज्बाती न हो तो अच्छा है, और ना होना चाहिए। लेकिन बसा औकात ऐसे मकामात आते हैं, जहां पर आप इंसान तो है ना, तो आप रूहां से हो जाते हैं, आवाज आपकी भर आती है। हिंदी में ये कम आए मौके मेरे लिए, या मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल कर गया। लेकिन उर्दू में ऐसे मौके बारहा आए, कि हिंदी उर्दू दोनों में। यार मुझको आप इजाजत दे, मैं बहुत एडिट करके बोल रहा हूँ, इससे कि नहीं, आप खुल के बोलिए।
नहीं मैं खुल के नहीं, मैं तो खोल के बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे कैमरा का यहाँ पे कोई अमूल दखल नहीं है। वो हो भी तो क्या कहते हैं आम जबान में, परवाह, वो तो बरपश्म कलंदर, वो तो वो चीजें नहीं आती खातिर में। कई एक मकामात आते हैं जहां पर आप काबू नहीं रख पाते। अब जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, अच्छा, हालांकि या इटालियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्दो मोरो की लाश मिली थी डिग्गी में से, मैं यहाँ आ चुका था लंदन, और तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है, और आवाज भराई, अदायगी नहीं हो सकी। और इसी तरह एक प्रोग्राम था, ये तो अभी हालिया, जैसे बीबीसी से रुखसत होने से पहले एक बच्ची ने, मुझे अच्छी तरह याद है, जहीरुद्दीन बाबर थे हमारे कंट्रीब्यूटर, उन्होंने की थी, वो पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहे थे, तो एक बच्ची ने, वो तूफान आया, सैलाब आया हुआ था, जलजिला आया हुआ था, और वो मैट्रिक में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहती थी। उसने नज्म भी लिखी, और उसको सबसे बड़ा अफसोस ये था कि उसकी तालीम डिस्टर्ब हो गई, और उसके बाद जो खत था उसमें, और जो कुछ उसने कहा था, न वो खत पढ़ा गया मुझसे, न वो खबर बयान की गई मुझसे। ऐसे मौके आते हैं जब आपका दिल भर आता है। मैंने लाख कोशिश की कि वो न हो। इसी तरीके से हमारी साथी थी सारा नकवी, उनका जिस वक्त इंतकाल हुआ है वो नहीं बर्दाश्त हुआ, और आवाज भरा गई थी। वो तो वकार अहमद प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने उनकी ओबिचरी जो थी वो अदा की थी। क्या आवाज थी, क्या अदायगी थी। उस जैसा शख्स जिसको मैं ब्रॉडकास्टिंग में कॉपी करता हूँ, यावर अब्बास, उनकी चंद एक चीजें मैंने मुस्तार ले रखी हैं जिनको मैं कॉपी करता हूँ। मसलन आदाब, सैरबीन के मौजूआत, और इसी के साथ प्रोग्राम के आखिर में इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ये नहीं कि मैं वकार अहमद इजाजत चाहूंगा, मैं हूं आपका मेहमान, मुझे इजाजत दीजिए, और सैरबीन तो आप मेरी मेजबानी में सुन रहे हैं, लेटे जाएं, पीछे चले जाएं। अबे भाई सैरबीन, वो सैरबीन को खबरों की वजह से सुनना है, तुम्हारी वजह से नहीं सुन रहा है। तो मैं वकार अहमद का जिक्र आ गया, मैं उनको कॉपी करता हूँ, उनसे मैंने ये चीजें मुस्तार ले ली, और वो मेरे हिस्सा हैं। इसी तरह से शाहिद मलिक, मेरे लिंग्विस्ट असातिज़ा जो हैं उनमें हैं, वो राशिद अशरफ हैं, वो हुए, और आरिफ वकार हुए। लेकिन बात ये थी उसमें कि आवाज वकार अहमद की भराई, वो बोल ही नहीं सके। उसी तरीके से उस बच्ची का जिक्र मुझसे नहीं हुआ, और मुझे ट्रांसमिशन समेट देना पड़ा, नहीं हट जाओ। इसी तरीके से तर्रारा गुस्सा भी आता है प्रोग्राम में, लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना होता है। मुझे याद है, प्रोफेशनलिज्म आप कहें, बिल्कुल सही इस्तेलाह आपने इस्तेमाल की, लेकिन बसा औकात सूफी साहब मुश्किल हो जाता है, बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। ना संगो फिश्त कह लें आप, आपने सही मिसरा इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे में घबरा जाता आदमी, अब क्या करे। अच्छा, लाइव भी जा रहे हैं आप, ये आपको पता है कि पता नहीं कितने कितने लोग आपको कैसे सुन रहे होंगे और कहाँ सुन रहे होंगे, और वहां पे कंट्रोल करना सर बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। इस मामले में मेरा दिल भी कमजोर है, गुर्दा भी कमजोर है, और मैं खुद भी बहुत कमजोर हूँ। नहीं होता, नहीं मुझे याद है जब बीबीसी रेडियो की बात कर रहा हूँ, जो वो आप एक सिग्नेचर म्यूजिक था, तो वो सुन के, तो क्योंकि उस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था, इतनी न्यूज एक्सेस नहीं होती, तो वो एक दैट यूज्ड टू बी कि भाई, यानी कि यहाँ से अब जो खबर आएगी ना, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी होगी, कोई न्यूट्रलिज्म होगा, तो वो फिर एक बहुत प्रेशर आप पे भी होता होगा, आई एम श्योर के यार लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग सुन रहे हैं, और वो यही उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो प्रेशर तो मस्ट हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर। सर आलम ये होता था कि मुझे कहनी नहीं चाहिए कि आपका मीडिया, वैसा लगेगा मैं तंज कर रहा हूँ, हमारा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, इसको देख करके अफसोस होता है। इस पर ये खातर जमा रखिएगा, मैं इस पर आता हूँ अभी, अगर मौका आपने दिया तो। अब उसमें
आप ये कोई प्रेशर नहीं होता कि कहाँ कहाँ लोग सुन रहे होंगे। वहां का आलम ये था कि यार ये तो हमने सुन ली इनसे, रेडियो पाकिस्तान से सुन लिया और पाकिस्तान टीवी से सुन लिया, अब ये सुनो कि बीबीसी क्या कहता है। ये था एतमाद, ये थी क्रेडिबिलिटी कि बीबीसी सुनो वो क्या कहता है। बीबीसी की खबरें, बीबीसी के तबसरे ऐसे ठुके हुए होते थे, ऐसे ठुके हुए होते थे, जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाला मामला होता था। लेकिन यहाँ खातिर जमा रहे, वहां पर भी कई एक ऐसी हरकतें हुई हैं बीबीसी में, कई एक ऐसी हरकतें हुई हैं जो प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ थी। मसलन मैं अपने ममायज में मैंने लिखा है, यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, मैं एडिट कर देता हूँ उसको। मसलन एक रिपोर्टर ने जो अंग्रेज था, उर्दू और हिंदी बोल लिया करता था, अरे यार मैं नाम ले देता हूँ, मार्क टली उसका नाम था, मार्क टली ने, उन्होंने खबर दी, दो खबरें उनकी गलत थी। एक तो ये कि मुफ्ती बहनी ने फौजी एतबार से अहम पुल तोड़ दिया है। अरे मुफ्ती बहनी के बाप ने नहीं तोड़ा था उस मशरक़ी पाकिस्तान वो पुल, लेकिन ये खबर जाने के बाद वो तोड़ करके आ गए, ये खबर जाने के बाद वो तोड़ करके आ गए। और इसी तरीके से एक दूसरी खबर थी कि जम और जोड़ियां सेक्टर में कब्जा कर लिया गया और जिम, लाहौर जिम खाना में वो जामे सेहत नोश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे बढ़े, ये चीजें मेरे नजदीक आदाब सहाफत के खिलाफ हैं। और इससे तो बेहतर सतीश जैकब था, सतीश जैकब और मार्क टली ये हैंड इन हैंड चला करते थे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था दोनों की रिपोर्टिंग में। बल्कि जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई है सतीश जैकब साहब से, अब नवाज शरीफ का मैं मेरा ख्याल है इलेक्शन जीतने के बाद इंटरव्यू करने के लिए पहुंचा हुआ था, वहां पर मेहमान खाने में सबको उन्होंने वहीं बिठा रखा था। तो सतीश जैकब से मेरी उस वक्त मुलाकात हुई थी, कहाँ हिंदी सर्विस, कहाँ उर्दू सर्विस, और कहाँ मैं उनसे मिला। लेकिन बहुत बड़ाई है सतीश जैकब की कि मैं उनसे मिला और उन्होंने उसी अपनायत के साथ गले लगाया। क्या दिन थे, क्या सहाफत थी। सहाफत तो बीबीसी की ये थी सर, उसको सुन करके लोग अपना दिमाग बनाया करते थे, मिजाज बनाते थे कि यार खबर ये थी, ये था, ये हुआ था। और पाकिस्तान की खबर पाकिस्तान को नहीं पता होती थी, जो यहाँ बैठकर के लंदन वालों को पता होती थी। ये एतमाद था सर, लेकिन उसके साथ घपले भी थे। हाँ बिल्कुल थे। लेकिन ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ आपको ही क्यों इंटरव्यू देते हैं? ये एक जो एक इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा, ये क्या है राज, ये बताएं हमें कि वो पूरी बीबीसी में से वो जो इसका तो हुमा आपके सर पे बैठता है, ये तो हुमा ही है। देखें, इसका एक आसान से जवाब तो ये गलत है, ये अफवाह है, दुश्मनों ने उड़ाई है। लेकिन सही बात है कि जितना नवाज शरीफ ने मुझे मौका दिया, शायद इतना किसी ने उनको नहीं दिया। और पहला इंटरव्यू उनका एग्जाइल के दिनों में इंटरव्यू, और दूसरा इंटरव्यू जो फतह मना रहे थे अपने इलेक्शन की, वो किसी को नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान को इंटरव्यू उसके एक दिन बाद मिला, लेकिन बीबीसी को मिल गया था वो इंटरव्यू। और तीसरा इंटरव्यू जो उनकी कश्ती डामाडोल हो रही थी और ये पाकिस्तानी अदलिया मुख्तलिफ फैसले कर रही थी और वो अनसीट हुए, ये हुए, उसकी मौजूदगी में उस वक्त भी उन्होंने तीसरा इंटरव्यू मुझको दिया था। ये वो वक्त है जिसका एक क्लिप भी लोग चलाते हैं। वो बेगम साहिबा को खुदा हाफिज कह रहे थे, वो अपने इलाज के लिए जा रही थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने मरहुमा कुलसुम नवाज साहिबा से बात की है, अच्छा ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, खैरियत से जाएं, खैरियत से तशरीफ लाएं। मैंने देखिए, अब मैं तारीफों के पुल नहीं बांधना चाहता, इतना अदब, तमीज और लिहाज से शौहर से बीवी को बात करते हुए कम ही देखा। ये वही
मरियम नवाज, कुलसूम नवाज थी, जिन्होंने कैंपेन चलाई थी नवाज शरीफ की जलावतनी और के दौर में और वापसी के उस वक्त। तो मैंने कहा था मियाँ साहब से कि मियाँ साहब आप कैंपेन वैम्पेन छोड़े, आपके बस की बात नहीं है, आपसे बेहतर तकरीर कुलसूम साहिबा करती हैं, आप इनको बनाएं। इसलिए कि कुलसूम साहिबा का इंटरव्यू हम कर चुके थे उस गाड़ी में जो वो ऊपर लटकी हुई थी जी उस गाड़ी वाइट रंग की करोला। जी हाँ, वो जिसमें जावेद हाशमी भी बैठे हुए थे और ये सारा का सारा इंटरव्यू बीबीसी से लाइव जा रहा था। और वो एक अजब मंजर था कि मैं बात कर रहा हूँ, बेगम साहिबा जवाब दे रही, और उसमें एक जगह एक मकाम ऐसा भी आया जिसमें मैंने कहा बेगम साहिबा आप कब तक बैठी रहेंगी, कुदरती हाजात होती है, कब तक बैठी रहेंगी। जावेद हाशमी ने फौरन फोन संभाला, गाड़ी में बैठे हुए थे, कहने लगे शफी जब तक जैसी उफ्ताद पड़ी जो जरूरत हुई हम करेंगे, हम देखी जाएगी। जावेद हाशमी ने जवाब नहीं देने दिया बेगम साहिबा को। लेकिन नवाज शरीफ के इंटरव्यू पर बात आ रही तो इत्तेफाक है। बल्कि आखिरी इंटरव्यू जो था, मैंने कहा मियाँ साहब आप जो बातें कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं वो इस वक्त क्यों कह रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं कही थी आप। और एक सवाल वो भी था, और एक सवाल ये भी था कि क्या आपको पता है कि ये जो बातें आप कह रहे हैं इसके बाद आप बंद होंगे, आप जेल जाएंगे और कोई माइकल लाल आपको नहीं बचा सकेगा इसमें। कहने लगे मैं ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उसके लिए तैयार हूं। ये वो बातें। और उसके बाद मैंने कुछ कागजात भी देखे उनके पास जो खुदा ना खास्ता अगर वाजे हो जाए, सामने आ जाए, तो यार मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तानी फौज के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा आएगा, बहुत बड़ा धब्बा आएगा कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं उसी हैशटैग के साथ ये मुल्क आप ही के बाप का है सर वो चला रहा हूँ, वो पूरा एक एक करके वो आ रहे हैं वाकयात। नवाज शरीफ ने बाहर नहीं आने दिए मियां साहब ने। यार आप तो सारी रात की बातें यही खुलवाना चाह रहे हैं। वो नहीं आने दिए, क्या हुआ उनका, क्या असर हुआ, वह मैं एक किनारे में इसका जवाब दे देता हूँ। जो भुट्टो साहब ने किताब लिखी थी जेल में रहते हुए, जिस वक्त बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई है, तो पीपीपी की हुकूमत ने वो किताब छपवाई थी। तीन किताबें लिखी थी अहम, जिसका हामिद मीर ने बड़ा बहुत वजाहत के साथ जिक्र किया था अभी कुछ दिनों पहले। तो वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी से कहा गया था, ये सीसीसी कर्नल कंट्रोल कमेटी, ये सीसीसी 3C जो है, मैं इन लोगों को कहता हूं कि अगर ये किताब आइंदा छपी तो पीपीपी कभी हुकूमत में नहीं आएगी। तो वही चीज थी कि अगर ये पेपर सामने आए या ये हुआ तो चीजें वो नहीं रहेंगी जो आप समझ रहे हैं। तो देखिए कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला कैसा है। तो ये है बातें हैं, अब ये सब तारीख का हिस्सा है। अब मेरे पास, और मैं उसी इंटरव्यू पर वापस आता हूँ, उसमें जो बातें उन्होंने कही थी, एक जुमला उन्होंने कहा था कि शफी साहब मैं नजरियाती आदमी हूँ। मैंने कहा ये नजरियाती आप कहां से हो गए, कब से हो गए। जाहिर है सहाफी का काम भी होता है कि कोई लगी लिपटे नहीं वहां बात करे यार, उस वक्त तो ये नहीं थे आप। हाँ, अब दबे लफ्जों में और खुले लफ्जों में ये तक बात आई, फौज के जानों पर होकर के तो आए आप, फौज के लाडले बन करके तो आए आप, ये बातें आप कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और अब क्यों कह रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं कहा था। उसके बाद उन्होंने मसलहतें और वो वजाहतें की, जाहिर है उनका हक था, बहैसियत सियासतदान वो उन्होंने की। लेकिन उनको बहुत अफसोस था, मेरा प्राइवेट मीटिंग में भी उनसे बड़ा मुकालमा हुआ है जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, उनकी तस्वीरों के साथ, उनके जुमलों के साथ। मशरकी पाकिस्तान के जाने का जो अफसोस नवाज शरीफ को था और जिस तरीके से गंवाया गया, और उसके पास जो वो तस्करा करते हैं कि यार हैरत है, मलाल तक नहीं है इनको
यानी इकबाल ने कहा था कि एहसास ज़िया तक नहीं, वो तक जाता रहा। उसका जिक्र बड़े दर्द के साथ उन्होंने किया था। लेकिन मेरा उसमें इंटरव्यू में यही था कि यार ये अब क्यों कह रहे हैं, जब कहने का वक्त था उस वक्त क्यों नहीं कहा। और तो बहुत सारी बातें उसमें तृष्णा है उस इंटरव्यू में भी। तो पहला, दूसरा, तीसरा इंटरव्यू उन्होंने मुझको दिया। आप कह सकते हैं कि मैं उनसे सख्त बात करता था, अदब से बात करता था, और उनको ये पता था कि ये किस इदारे की नुमाइंदगी कर रहा है, बीबीसी की नुमाइंदगी। वहां से मौकिफ जाएगा, हाँ कुछ भी हो, खबर दबेगी नहीं, पूरा का पूरा उसमें से जाएगा। इस एतबार और इस एतमाद के साथ वो इंटरव्यू दिया करते थे, और वो आखिर वक्त तक कायम रहा। आप खैर मनाए, अभी 2-3 लोग थे जिनका इंटरव्यू आते आते रह गया। अच्छा। और हाँ तो छोड़ दे तो वो बातें आ जाएंगी, वो बातें आ जाएंगी, उसमें कोई वो नहीं। सही है, सही है। नादिया सुलेमान ने भी ज्वाइन किया हमें बीबीसी इस्लामाबाद से, वो भी अच्छा, हेलो कह रही है। तो मैं चुप हाँ। हो जाऊं? तो मैं चुप नहीं, तो मैं चुप मैंने कहा नादिया अब सुलेमान, आपको, नादिया अब सुलेमान, नादिया अपनी स्टोरियां सुन के वो रिपोर्ट बना लेगी। नादिया सुलेमान बहुत मेहनती, बीबीसी में जो आता है मेहनती होता है, बहुत टैलेंटेड। और इंशाल्लाह ये लोग हैं, ये नया खून है, बासलाहियत लोग हैं, ये कहीं से कहीं पहुंचेंगे। और ये जो नई टीम आई है ना, इसका जो इंतखाब किया गया है बहुत अच्छी है सर, आप देखेंगे बीबीसी ही रहेगा। हाँ, नहीं, आसिफ फारूकी साहब, नादिया, ये सारे बड़ा अच्छा, वेरी वेरी गुड टीम अरे इन बीबीसी। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि मैं इन लोगों के बारे में गजल कहूं, मुशायरा कराऊं, क्या कहूं? एक से बढ़कर के एक ठुका हुआ आदमी है सर। वो बिलाल हो, ये हो, सब 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 अच्छे हैं, एक से एक। देखे ना, वेरी एक पूरे प्रोसेस से गुजर करके आता है। ये वो है जो समझ ले भट्टे में तप करके ईंटें बनते हैं, ये रद्दे होते हैं, उसके बाद भट्टे में तप करके ये ईंटें बन करके निकलते हैं, और ये बड़ी मजबूत ईंटें होती हैं सर। फिर आप क्या क्या ख्याल है, फरहत जावेद, रब्बानी, और ये सब मैं अब नाम लूंगा ना, ये होगा फिर मेरी मुसीबत होगी, यार वो आपके सगे थे, लाडले थे, आपने हमारा नाम नहीं लिया। ये सब अच्छे हैं। नादिया की तरफ तो अब, नादिया की तरफ तो पार्टी बन गई है, आपने उसकी इतनी तारीफ कर दी मेरे शो पे, तो अब नादिया से तो पार्टी मैंने लेनी है। आप ले 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 ले। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी कुक भी है मेरी तरह से। ये मैं प्लग इन कर रहा हूँ कि मैं ठीक ठाक बना ले तो अच्छा सर, खाना। आपका अभी एक रिसेंटली आपसे सवाल है कि आपके जो इंटरव्यूज है, मैं पहले भी देखता हूँ, नवाज साहब का आपने जिक्र किया, इमरान खान साहब हैं, और भी आपने जो इंटरव्यूज किए, परवेज मुशर्रफ का आपका एक काफी हीटेड इंटरव्यू था, उसकी जरा बताएं कि वो जब आपका हुआ, इट वाज अ वेरी popular heated interview, so how did you find it, like were you expecting it's gonna go to the direction that it went? ये तो मुझे पता नहीं कि, लेकिन इतना पता था कि मैं उनसे जवाब निकलवा लूंगा। मुझको अनवर महमूद साहब थे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उन दिनों, उन्होंने मुझे कुल 13 मिनट दिए थे, 13-15 मिनट दिए थे। तो मैं गया था, फौज पर सीरीज कर रहा था मैं, फौज आती है या बुलाई जाती है, उसमें फौज बनती कैसे है, क्या थी, कैसे हिफाजत की मुल्क के, उसने कैसा जान दिल जिस्म सब कुछ लड़ा दिया, कुछ नहीं मिला तो कांटे लगा करके कागजों में ये काम किया करते थे, मैंने वो देखा। और यकीन, इत्तेहाद और तंजीम, वो पहाड़ी पर लिखा हुआ इस्लामाबाद पे जाते हुए, तो मैंने कहा यार मैं हाँ, तो मैं उनसे वो सब बातें करूंगा। लेकिन मैंने कहा यार मुझे ये बातें तो सब कुछ है, मुझे कुछ और बात भी करनी है। अब इत्तेफाक ये कि उसकी इब्तिदा कैसे हुई, वो ऐसे हुई कि उन्होंने हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, मैंने हाथ नहीं मिलाया उनसे, मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, कहले हाथ नहीं मिलाएंगे। मैंने कहा छोड़े सर, आपने तो आइन तोड़ दिया, मैं आइन तोड़ने वाले से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये जलती पे तेल का काम करने वाला ईंधन था, या ये समझे कि वो गर्म आलू था कि जिसको परवेज मुशर्रफ आखिर वक्त तक संभाल नहीं पाए।
اور یہی وہی بعد میں ہوا. انٹرویو کنٹینیو رکھا اس کے بعد بھی؟ ہاں نہیں یہ بڑائی ہے ان کی, یہ بڑائی ہے ان کی, انہوں نے رکھا. اور جو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ نے نواز شریف کو ہٹا دیا کیوں؟ نواز شریف نے آپ کو ہٹایا, وہ اس کا آئینی حق تھا. آپ نے جو ہٹایا وہ آئین تاراج کرنے والی بات تھی. یہ سارا ریکارڈ میں ہے, میں آپ کو کوئی سویزب کہانی نہیں سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا تو اب وہ پھیلے چوڑے ہوئے. اچھا مشرف صاحب وہ لمبے توڑیں گے, ایوب خان جیسے نہیں, میڈیم سی ہائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قد میرا مسئلہ نہیں تھا, ان کا آئین توڑنا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا بات یہاں تک آ گئی, اچھا تو اگر وہ آپ کو نہیں ہٹاتے تو آپ انقلاب نہ لاتے؟ ہاں. تو میں نے کہا کہ گویا کہ یہ انتقام تھا. اب مجھے جو بات کہلوانی تھی وہ کہلوا لی. تو میں نے کہا اگر وہ وہاں لے آیا میں ان کو, اور پھر اس پر دو ایک اور باتیں بہت سخت قسم کی ہوئی. تو انور محمود صاحب نے اشارہ کیا, جیسے ہوتا ہے نا وہ کمپیئر سے کرتے ہیں اشارہ کیا یار آپ کا وقت ختم ہو گیا. اصل میں محمود صاحب کو گھبراہٹ ہوگی کہ یار یہ انٹرویو کہاں لے جا رہا ہے. میں نے کہا رکے. تو میں نے کہا میرا وقت ہو گیا. تو یہاں پر مشرف صاحب نے کہا آپ کریں جی, آپ سوال کریں, چھوڑیں, آپ کو 15 منٹ دیے تھے یا کیا دیے تھے, یہاں ہوا ہے. تو اس کے بعد یہاں سے چل پڑی پھر کہ وہ یہ نہ کرتے تو یہ نہیں, ہاں یہ نہیں ہوتا. پھر اور بھی اس کے اندر ہیڈ لائنز بنانے والے جملے نکلے کہ آپ وردی کب اتاریں گے, کب دیں گے, اس قسم کے. دوسرے لوگوں نے بھی یہی سوال کیے. اور اس کے بعد آخر میں انٹرویو اس نہج پر آ گیا کہ وہ بہت ان سے سنبھل نہیں رہا تھا. ختم ہو گیا انٹرویو, لیکن بہت اچھے موڈ میں ختم نہیں ہوا. اس کے بعد وہ آخر میں وہ شیل دی جاتی ہے, ایک گرین کلر کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں کوئی وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ پلیٹ وغیرہ ہوتی ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے دی جاتی ہے. تو وہ تو میں نے لے لی, وہ تحفہ تو میں نے لے لیا, اس لیے کہ جتنے تحفے ہوتے ہیں وہ بی بی سی کو جاتے ہیں, آپ کو نہیں, آپ کے باپ کو نہیں دے رہا ہے, وہ بی بی سی کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ لے کر کے بی بی سی والوں کو دے دیا کہ یار ٹھیک ہے وہاں سے یہ ملے تھے. تو اس کا ہاتھ پھر بڑا آگے, خادم حسین نے ہاتھ نہیں ملایا, پھر نہیں ملایا. خادم حسین کون؟ شفیع نے ہاتھ نہیں ملایا. اس کے بعد انور محمود نے مجھ سے کہا کہ شفیع جتنی تیزی سے بھاگ سکتے ہو بھاگو. آپ یقین کریں گے کہ اسلام آباد سے جو اویلیبل فرسٹ فلائٹ تھی میں اس سے لے کے نکل گیا, کپڑے سوٹ کے ساتھ چھوڑ چھاڑ کر کے, اور میں پار بولا, اس لیے کہ مجھے خبر نہیں بننا تھا, خبر نہیں بننا تھا, اور مارا جاتا میں خواہ مخواہ کے لیے. ہیرو بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہوا وہ انٹرویو جس طرف میں لے جانا چاہتا تھا میں لے گیا اس کو. اور جو مجھے بات مل گئی جو آپ جو خبر تھی, جو خبر تھی یا کیا کہتے ہیں جو ہیڈ لائن تھی وہ مجھ کو مل گئی. مل گئی آگے. بالکل. آپ سے سر جو سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ نے اب تک جتنے انٹرویوز کیے ہیں, آپ نے کافی ہائی پروفائل انٹرویوز کیے ہیں, ماشاءاللہ you are an institution in your own. Which subject did you find was the most intelligent that you had to tackle, یعنی کہ جس میں آپ کو بھی ذرا اسکوئم کرنا پڑے گا یار ان سے ذرا سنبھل کے انٹرویو کر. نظریہ پاکستان, جسٹس دوراب پٹیل سے میں نے بات کی تھی, مرحوم سے, کہ یار آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت جانے دیا, کانسٹیٹیوشنز میں جانے دیا, یہ کیا تھا؟ نظریہ ضرورت اور پاکستان کا آئین, اس انٹرویو کو سنبھالنا جسٹس دوراب پٹیل کے ساتھ مشکل تھا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ تھی اسلامی مشاورتی کونسل, اس کے چیئرمین تھے, ان سے انٹرویو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ انٹرویو بہت مشکل ہو گیا تھا. اور اس میں مولانا فضل الرحمان سے میں نے کہا آپ کیا کریں گے انتجاوی سے, کہنے گے ہم اس کو اوپر تک پہنچائیں گے. تو میں نے کہا کتنے اوپر تک پہنچائیں گے؟ اچھا مجھے معلوم تھا میں ان کو کہاں لے جا رہا ہوں.
اور وہ بھی بہت زیرک ہے مولانا فضل الرحمان. آپ بھلے ان کو کچھ نام دیتے رہے, ایسا ویسا کہ آپ کو زج کر کے چھوڑے. تو میں نے کہا کہ وہ تجاویز کس کو دیں گے اسلامی مشاورتی کونسل کی؟ کہنے لگے اس سے اوپر دیں گے. میں نے کتنے اوپر دیں گے, میں کس کے پاس جائیں گے؟ کہنے لگے کہ صدر مملکت کے پاس جائیں گے. میں نے کہا ہاں اب آیا نا جواب اس کا, تو اس کے کس ہاتھ میں دیں گے؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا مشرف صاحب نے باہر آتے ہی 2 کتے دکھائے, یہ والا یہ ہے, یہ والا یہ, 2 کتے لے کر کے وہ نکلے تھے, ان کے کس ہاتھ میں دیں گے آپ کی تجاویز, دائیں میں یا بائیں میں؟ مولانا صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے. شیطانی والا سوال تھا, خود بھی ان کو ہنسی آئی کہ یار کیا بات کر رہے ہیں اس کے اندر. تو بات آئی گئی, وہ مجھے انٹرویو مشکل لگا تھا مولانا فضل الرحمان سے. ایک تو یہ, اور ایک مکالمہ آتا تھا پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن سے, اس میں کنسٹرکشن یا تعمیرات کے اس کے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے, توقیر زیاد تو منگلا کور کمانڈر تھے, وہ کرکٹ کے بہت اچھا بولتے. جو گورنر پنجاب بھی رہے, ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, خالد محمود کی نہیں بات کر رہا میں, ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی جا جائے تنویر وہ ہوا کرتے تھے, لیفٹیننٹ جنرل تنویر. تو وہ جو بات کو ان سے کہ یار آپ جواب دیں اس کا. میں نے کہا کہ یہ کیسے کریں, کہ آپ بتائیں کیسے. تو 3-4 مرتبہ مجھے زج کر دیا انہوں نے, آپ بتائیں. میں نے کہا سنیں سر, انٹرویو کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں؟ آپ. میں نے کہا لندن سے کون آیا, میں آیا ہوں یا آپ آئے؟ سوال میں کروں گا, جواب آپ دیں. کہ لگے واپس مشین کو بند کر دیں. مشین کو, بڑی دلچسپ انٹرویو تھا وہ والا. ہاں, اور اس میں وہاں اور بھی ایسی باتیں بھی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ گھر میں آپ جب داخل ہوتے ہیں تو عورتیں پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں, اس لیے آپ بہت سخت آدمی ہیں, آپ مسکرانا نہیں آتا, تو پھر وہ ہنسے مسکرائے. یار یہ تو بڑی غلط بات ہے. میں نے کہا میرے آپ کی گھر کی عورتوں سے ہی پتہ چلا کہ وہ بہت ڈر خوف رہتا ہے ان کو. آپ گھر میں بھی بالکل گردن آپ کی اکڑی رہتی ہے, فوجی بنے رہتے ہیں. یہ غلط بات ہے, مجھے بھی ہنسی آتی ہے. تو یہ 2-4 انٹرویوز ہیں, بہت مشکل رہے. اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں جتنے فوجیوں سے میں نے انٹرویو کیے, ان میں سب سے زیادہ ٹیڑھا انٹرویو مشرف صاحب کا تھا, یا سب سے آسان انٹرویو جنرل جہانگیر کرامت کا تھا, جو استعفیٰ دے کر کے چلے گا. وہ ان سے تو میں نے یہ کہا تھا آپ بولیں, کہنے لگے سر میں کوئی نہیں بولوں گا, نہیں بات کروں گا آپ سے, مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا. میں نے کہا آپ سے نہ کہیں. میں نے دیکھیں سر بات سنیں, آج آپ ہیں تاریخ, آج آپ ہیں خبر, کل آپ مر جائیں گے, کل آپ تاریخ ہو جائیں گے, کوئی خبر نہیں ہوگی آپ کے پاس. کیا یہ راز جو ہے اپنے سینے میں لے کر کے جائیں گے؟ تو جنرل جہانگیر کرامت نے کہا تھا کہ اچھا چلیں جی پوچھیں. اب فوجی کی غیرت اور حمیت کو اگر چھیڑ دیں نا تو پھر وہ ذرا سا سچ بولتا ہے, غور کریں, ذرا سا سچ بولتا ہے, ورنہ تو میں اور کچھ نہیں کہوں گا. تو عباس ناصر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بی بی سی اردو سروس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے, بہت ذہین اور اس سے زیادہ جرنلسٹکلی بہت زبردست. تو میں نے کہا عباس بھاگ. اب یہ بے تکلفی تھی, ایسا نہیں کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں. اچھا, ان کو امید نہیں تھی کہ میں جہانگیر کرامت کو پکڑ لاؤں گا, تو انہوں نے دیا انٹرویو اور دبا کر کے دیا, پھر وہ ہیڈ لائنز میں چھپا تھا سارا کا سارا. مشکل انٹرویو ایک تھا نواب اکبر بگٹی کا. اچھا, ہاں, اس وقت وہ کہہ رہے یار میں آپ سے صرف پنجابی میں بولوں گا یا انگریزی میں بولوں گا. I will only speak to you either in Punjabi or in English. So why not? He was fluent in Punjabi. او خدا کی پناہ, کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں آپ؟ بہت کہنے لگا یا تو میں پنجابی بولوں گا, یا میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہے تھے, یا میں انگریزی میں بولوں. میں نے یہ کیوں؟ کہنے لگے دیکھیں پاکستان کی قومی زبان پنجابی ہے, اور دوسری ان کی زبان ہے انگریزی, جو یہ غلط بولتے ہیں, جو یہ غلط بولتے. تو بہت مشکل انٹرویو تھا, لیکن ان سے پھر میں نے اردو میں بات کی. کہنے چلیں یار آپ ضد کرتے ہیں, بولتے ہیں. یہ 2-4 انٹرویو ہیں فوری طور پر میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو خاصے مشکل تھے. صحیح. لاسٹ کوسچن سر, آگے پاکستان کی فیوچر کی سیاست میں اب ہمارے جو اس وقت جس طرح چل رہا ہے, بلاول بھٹو, شہباز شریف اور عمران خان صاحب,
آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے ایکسپیرینس میں آپ نے اتنی دیکھی، امیر لوگوں سے بھی ملے، باتیں بھی کی آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے اتار، بلکہ آپ کے موسٹ انٹرویوز لوگ اسی لیے کوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں سیاستدان اکثر ایسی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں جن کو بعد میں وہ پھر جن پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلی سیاست میں بلاول بھٹو، شہباز شریف اور عمران خان کا کیا کردار؟ یار یہ آپ نے اب تک کا سب سے مشکل سوال کیا ہے مجھ سے. آپ یہ لاسٹ سوال نہ کرتے تو اچھا ہوتا. آپ نے کیا ہے، اور پہلے اگر آپ یہ سوال کرتے میں کہتا یار بھاڑ میں گیا، آپ کا انٹرویو وغیرہ کسی اور سے کرا لیں، مجھے ایسی باتیں نہیں. دیکھیں میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو اس منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا. پہلا فوج کو فوج ہٹائے گی پاکستان میں. سن لیں بات دھیان سے، لے آئے نا، مجھ سے سننا ہی چاہ رہے تھے نا. فوج ایسے نہیں ہٹے گی. ہر جگہ پر فوج ہے. میں نے ایک جملہ میں کہتا ہوں جس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے پاس ایک فوج ہوتی ہے. ہماری فوج کے پاس ملک ہے. ملک یہ غیر مرئی طاقتیں ہیں. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے یا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ ہو. اچھا اب انہوں نے کیا ہے، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو جمہوریت کے نام پر کسی اور سے کروا رہے ہیں یا کسی اور سے کروا رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے، میں عمران خان کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں اور میں نے ان سے بات بھی کی ہے بے شمار، شیڈو کیبنٹ سے لے کر کے کیا ہوگا کیا نہیں ہونا چاہیے. ان کی میٹنگز تک ارینج کرانے میں نجیب ہارون جو این ڈی انجینئرنگ کالج کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اس شخص نے جان دے دی سارا کا سارا ان کو کرنے میں. وہ پارٹی تک چھوڑ کر کے چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی، لیکن وہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ فوج کو اب آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے عزیز ہم وطنوں، اور فوجی ڈرم بجے اور تقریر ہو کہ قوم کے مفاد میں ہم نے یہ کر لیا ہے. 90 دن کے لیے آتے ہیں، 9 سال نہیں جاتے. آتے ہیں 3 مہینے کے لیے، 10-11 سال نہیں جاتے. وہ نہیں، اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کام کرانا چاہتے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. محترم مشفق عمران خان کے ہاتھوں ہو رہا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا پھر اور دوسری چیزوں کو آپ لے لیں، ان سے تو میں بڑا مایوس ہوں. لیکن میں اب آپ بلاول بھٹو یا مریم نواز، ان کے جوہر ابھی کھل کر کے سامنے نہیں آئے. آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں کہ یہ خاندانی سیاست ہے، پیشہ ورانہ یہ ہے، کسی اور کو آنے دیں، یہ کر دیں. بھائی کسی اور کو آنے دو تو کس کو آنے دو گے؟ سائیکل کے میکینک سے آپ ہڈیوں کا آپریشن تو نہیں کرا سکتے، یا مزدور سے، موچی سے، چمار سے وہ بڑے اچھے جوتے بنا لے گا، اس سے یونیورسٹی تو نہیں بنوا سکتے آپ. فوج جو خدمت کرتی ہے، کام کرتی ہے آفات میں، بلیات میں، طوفان میں، سیلاب میں، وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا. عام فوجی پہ جان قربان جس کی کمر تختہ بن جاتی ہے، لیکن ان پر جان نہیں قربان جو آئین توڑتے ہیں، تاراج کرتے ہیں. تو براہ راست آئیں یا کسی اور ڈمی کو سامنے لے کر کے آئیں. بائی دا وے میں بعض اصطلاحات استعمال کرتا ہوں. ڈمی، تم سے مراد ہوتی ہے فوج، ڈمی سے مراد ہوتی ہے کوئی اور. مجھے مت تنگ کریں نا، آپ نے اچھا کہ آخری سوال کہہ کر کے آپ نے مجھے پھنسایا. میں ان کے جوہر ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، نہ بلاول کے، نہ مریم نواز کے، اور کچھ آتا ہے ان کو، کچھ نہیں آتا. لیکن میں یہاں پر ایک شاعر آ رہا ہے میرے ذہن میں، جس کو میں بچپن میں کچھ سمجھتا تھا، جوانی میں کچھ سمجھتا تھا، اور اب آ کر کے کچھ اور سمجھتا ہوں. اقبال نام ہے ان کا، جن کو میں نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری سے سمجھنا شروع کیا. پھر میٹرک کے دنوں میں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے دیوار ہلا دو. ہاں، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. انقلاب آ رہا تھا، اب آتا ہے کچھ اور. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے،
पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। ये आदाब, ये जिंदगी फिर से सीखने होंगे हमको। हम जमहूरियत में चल सकते हैं, जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकते। और जब तक हम ये न तय कर लें सर कि जिसका जो काम है उसको करना है, काम होगा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। अपने आप को मजबूत करें, जमहूरियत को मजबूत करें, दूसरे को कमजोर न करें। फौज ये मुल्क को नहीं चला सकती, नहीं चला सकती, नहीं चला सकती। आप जोर लगा करके कर लेंगे इसका बेड़ा गर्क, जोर लगा करके कर देंगे, लेकिन आपको घूम फिर करके फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। अब मैं कितने बयानात लूं, कितने यूटर्न लूं, दिल के दरिया को किसी पार उतर जाना है, इतना बेसिमत ना चल, लौट के घर आना है। क्या बात कही है यार, बहुत। आपको तो कुछ और होना चाहिए था। आप बड़े बाकमाल आदमी हैं, मैं आपके जौहरों से वाकिफ हूँ, जिस तरीके से आप लोगों को फंसाते हैं। आपने आखिरी सवाल में मुझको फंसा लिया। मैंने आपसे ही सीखा है सर, मुशर्रफ वाला पैंतरा आपसे लगा ये बात जरदारी साहब ने कही थी। मैंने पूछा ये वन लाइनर आपने कहाँ से सीखे? आपके जरदारी साहब कहने लगे आप ही से सीखे। मैंने कहा ये मैंने कब कहे, ऐसे कौन? नहीं आप बहुत कहते हैं। और एक यार आप लोग बहुत शरीफ शैतान है, आप लोग शरीर रहमान साहबा, खुदा की पनाह। देखे ना वाकयात, सारी की सारी चीजें मेरे उसमें जहन में आ रही हैं। अल्लाह मियां मेरे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह मियां पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, कोई नई मुसीबत, नई आफत न डाले, इसको तरक्की की राह पर गामजन करे, और सहाफी सहाफत करे, ईमानदाराना करे, सिपाही अपना काम करे, नकाब चढ़ा कर रिश्वत न ले। क्या क्या कहूँ, कैसी दुआएं करूं। अल्लाह करे हम लोगों को सिरात मुस्तकीम नसीब हो, और वो काम करें हम कि वाक़तन काबिल तकलीद नमूना बन जाए। कौन सा मुल्क है कि जिसके पास जौहरी ताकत ना हो लेकिन सांप के कांटे का इलाज ना हो? कौन सा मुल्क है कि जो बारहा साबित कर चुका है कि वाक़तन कौम है, जिंदा कौम है, अब वो ड्रामे देखने में लगी हुई है, किरदार ढूंढने में लगी हुई है। छोड़े यार, हीरो भी हमारे किराए के है ना सर, हीरो भी हमारे किराए। आप बहुत बहुत शरीफ किस्म के शैतान है। अल्लाह बचाए। उम्मीद है मैंने आपकी बड़ी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत मजा आया आपसे बातें सीखा बहुत कुछ। हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया। अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे करंटीना के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। Thank you very much viewers for joining us for an amazing comfort session on Let's Talk with none other than Shafiq Ajami sahab, and he told us some amazing stories। उन्होंने अपनी जिंदगी का अर्क निचोड़ के तो हमारे सामने रख दिया, जो कि उनकी किताब भी अब आने वाली है, या आगे के शायद आने वाली है ना? आएगी 3 ज़बानों में आ रही है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी में खुद कर रहा हूँ और अंग्रेजी भी मैं खुद ही तोड़ लूंगा। उर्दू बस फिर वो ऑटोग्राफ हुई हुई किताब एक मेरे घर पे आ जानी चाहिए, या मैं खुद आके ले लूंगा आपसे इंशाल्लाह सर। 3 तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हमारा धूप किनारे स्पेशल है। कल मरीना खान हमारी मेहमान होंगी लेट्स टॉक में, और हम उनसे कल धूप किनारे के बारे में बातें सुनेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।